کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے مشرق کے ایک سرسبز اور شاداب علاقے میں ایک مسلم راجا حکومت کرتا تھا۔ اس راجا کا نام تاریخ کے صفحات میں کبھی واضح طور پر درج نہیں ہوا، مگر اس کی انصاف پسندی اور اصولوں کی پابندی کے قصے زبان زدے عام تھے۔ لوگ اس کی رعایا ہونے پر ناز کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی بھی فریاد لے کر دربار تک جائے تو راجا عدل کے ذریعے انصاف ضرور دے گا۔ راجا کی پرورش ایک دیندار اور اصول پسند خاندان میں ہوئی تھی۔ اس کے والد بھی اپنے دور کے مشہور حکمران رہے، جنہوں نے عوام کی فلاح کے لیے نہ صرف کئی منصوبے شروع کیے بلکہ اپنے بیٹے کی تربیت میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بچپن سے ہی راجا کو قرآن و حدیث کی تعلیم، فقہ اور دیگر علوم دینیا سے روشناس کروایا گیا۔ ساتھ ساتھ فن حرب اور انتظامی امور میں بھی اس نے کمال حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو اقتدار سنبھالتے ہی راجا نے نہ صرف سلطنت کو مزید مضبوط کیا بلکہ عدل و انصاف کا نظام بھی بہتر کر دیا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے حرم میں کئی بیویاں ہونا ایک عام سی بات تھی۔ راجا کی بھی متعدد بیویاں تھیں، مگر وہ سب کو پورا وقت دیتا، ان کی دیکھ بھال کرتا، ان کی ضرورتیں پوری کرتا اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیتا۔ اس کے نزدیک نکاح ایک مقدس بندھن تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہر بیوی کے ساتھ اس کا برتاؤ بہترین ہو۔ مگر اس کے باوجود ان بیویوں کو اکثر کسی نہ کسی بات کی شکایت رہتی۔ کبھی ایک بیوی شکوہ کرتی کہ راجا نے فلاں کو زیادہ قیمتی تحفہ دیا اور مجھے کم دیا، تو کبھی دوسری کو گلہ ہوتا کہ مجھے دربار کے کسی جشن میں مناسب اہمیت نہ ملی۔ تیسری کہتی کہ میری بات کو اتنی توجہ نہیں ملی جتنی فلاں کی بات کو ملی۔ گرج ان چھوٹی چھوٹی رنجشوں نے راجا کے قلب و ذہن کو بوجھل کر دیا تھا۔ ان بیویوں کی باہمی رقابتیں اکثر بڑھ جاتی تھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دربار میں موسم بہار کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر راجا نے سب بیویوں کو ایک جیسا قیمتی لباس تحفے میں دیا تاکہ کوئی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ لیکن اس پر بھی کسی نے اعتراض کر دیا کہ اس کے لباس کی کڑھائی ذرا سی مختلف ہے، یا کسی اور نے شکوہ کیا کہ مجھے تو ہار کم خوبصورت ملا ہے۔ اس قسم کی شکایتیں معمول بنتی جا رہی تھیں۔ راجا خود حیران تھا کہ وہ تو انصاف اور برابری کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، پھر بھی بیویاں مطمئن کیوں نہیں ہوتی؟ یوں تو سلطنت کے انتظامی معاملات بہت منظم تھے، مگر گھر کے معاملات کی بے سکونی نے راجا کو پریشان کر رکھا تھا۔ ایک طرف اسے اپنے دربار میں روزانہ کئی اہم فیصلے کرنے پڑتے تھے، ازمینوں کے تنازعات، تاجروں کے جھگڑے، سپاہیوں کے معاملات اور رعایا کے دیگر مسائل۔ دوسری طرف گھر میں قدم رکھتا تو بیویوں کے نخرے اور شکوے شروع ہو جاتے۔ بعض اوقات وہ سوچتا کہ شاید میں ہی کچھ کمی کر رہا ہوں، یا ممکن ہے کہ عورتوں کے مزاج کو سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ انہی دنوں ایک اور بڑا معاملہ سامنے آیا۔ سلطنت میں ایک نہایت ہی نیک، دیندار اور عالم فاضل شخص رہتا تھا۔ وہ شخص لوگوں کے مسائل حل کرنے میں بڑا ماہر تھا۔ لوگ دور دور سے آ کر اس سے مشورہ لیتے، دعائیں کراتے اور اپنی مشکلوں کا حل دریافت کرتے۔ وہ شخص حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا، لیکن اگر کوئی انصاف کا طالب ہوتا تو اسے دین و شریعت کی روشنی میں مشورہ دیتا۔ اس کی مقبولیت اتنی زیادہ تھی کہ بعض اوقات دربار کے وزراء بھی اس سے مختلف امور پر رائے لینے پہنچ جاتے۔ وہ شخص کبھی اپنا معاوضہ نہ لیتا، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرتا۔ ایک دن اچانک یہ خبر پھیلی کہ اس عالم فاضل کو کسی سنگین جرم کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس خبر نے سلطنت میں ہلچل مچا دی۔ لوگ حیران تھے کہ اتنا نیک اور پاکیزہ شخص آخر ایسا کون سا جرم کر سکتا ہے، مگر دربار کے ایک با اختیار منصبدار نے سرکاری طور پر اعلان کیا کہ ہمارے پاس اس کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اس لیے سزا کا فیصلہ اٹل ہے۔ عوام نے شور مچایا کہ یہ ظلم ہے، مگر منصبدار نے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ راجا کا حکم ہے اور ہم قانون کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ جب پھانسی کا دن قریب آیا تو رعایا کی ایک بڑی تعداد شہر کے مرکزی میدان میں جمع ہو گئی، جہاں عام طور پر سزائیں دی جاتی تھیں۔ لوگ اپنے محبوب عالم کی رہائی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ کچھ بزرگ قسم کے افراد نے باہم مشورہ کیا کہ راجا سے براہ راست التجا کی جائے، شاید وہ رحم کھا کر سزا معاف کر دے۔ چنانچہ وہ دربار میں حاضر ہوئے۔ راجا انہیں دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ لوگ اس وقت کیوں آئے ہیں۔
बुजुर्गों ने अर्ज किया, आली जा, ये शख्स निहायत नेक और आलिम फाजिल है। ये तो लोगों को नेकी की तरफ बुलाता है, उन्हें अच्छे कामों की तरगीब देता है, बीमारों का इलाज करता है, गरीबों की मदद करता है। इसने कभी कोई जाती फायदा नहीं उठाया। आपके मनसबदारों ने जरूर कोई गलतफहमी पाल ली होगी। हम हाथ जोड़कर दरख्वास्त करते हैं कि इस बेगुनाह को माफ कर दीजिए। राजा ने उनकी बात बड़े तहमुल से सुनी। चूंकि राजा बुनियादी तौर पर नरम दिल था और खास तौर पर अल्लाह वालों की बहुत इज्जत करता था, इसलिए वह सोच में पड़ गया। उसने वजीर आजम और दीगर मुशीरों की तरफ देखा। वजीर आजम ने खामोशी से गर्दन झुका ली, जैसे वह खुद भी इस फैसले से मुतमिन न हो। राजा ने कहा, मुझ तक पहुंचने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ये शख्स एक सख्त मामले में मुलव्विस पाया गया है। कानून के मुताबिक इसकी सजा फांसी ही है। लेकिन मुझे तुम लोगों की इल्तिजा और इस आलिम की नेक नामी का एहसास है। मैं चाहता हूं कि इस मामले को किसी न किसी तौर देखूं। अगर वाकई ये बेगुनाह है तो मैं इसे बचाना चाहूंगा। दरबार में मौजूद बुजुर्गों ने खुशी से एक दूसरे को देखा कि शायद राजा ने दिल में रहम की कोई सूरत पैदा कर ली है, मगर राजा ने अगले ही लम्हे कहा, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। अगर मैं महज जज्बाती होकर सजा माफ कर दूं तो रियाया कानून को हल्का लेगी। लोग सोचेंगे कि जुर्म साबित होने के बावजूद सजा माफ हो सकती है। इसलिए मैं एक शर्त रखता हूं। अगर ये शख्स मेरे एक सवाल का दुरुस्त जवाब दे दे तो न सिर्फ मैं इसे माफ कर दूंगा, बल्कि इसे इज्जत व इकराम से भी नवाजूंगा। लेकिन अगर वो जवाब न दे सका तो कानून के मुताबिक अब फांसी पर लटका दिया जाएगा। बुजुर्गों के दिल में एक नई उम्मीद जागी। उन्होंने पूछा, आली जा, वो सवाल क्या है? राजा ने कहा, वो सवाल मैं खुद उस आलिम के सामने रखूंगा। तुम जाकर उसे इत्तला दो कि मैंने उसके लिए एक मौका पैदा कर दिया है। अगर वो जवाब दे सके तो जान बच जाएगी, वरना अफसोस। यूं दरबार बर्खास्त हो गया। बुजुर्ग लोग तेजी से कैद खाने की तरफ गए जहां उस आलिम को रखा गया था। वो आलिम अगरचे जाहिरी तौर पर कैद में था, मगर अंदर से पुरसुकून था। उसने जब बुजुर्गों से सारी रुदात सुनी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अगर राजा वाकई रहम करना चाहता है तो अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे यकीन है कि हक सच कभी छुप नहीं सकता। मैं राजा के हर सवाल का सामना करूंगा। बुजुर्गों ने उसे दुआ दी और कहा कि अब कल सुबह दरबार में हाजिरी है, वहां राजा सवाल पूछेगा। तुम्हें पूरी अक्ल व दानिश से काम लेना होगा। अगली सुबह का मंजर बहुत दिलचस्प था। शहर के मरकजी दरबार में एक जमे गफीर था। लोग देखना चाहते थे कि राजा क्या सवाल पूछेगा और ये आलिम क्या जवाब देगा। राजा अपने शाही तख्त पर बैठा था। तख्त के आकब में शानदार पर्दे लटक रहे थे और इर्द गिर्द शाही सिपाही हाथों में नेजे संभाले खड़े थे। दरबार के दाएं बाएं वुजरा और मुशीर बैठे थे, जबकि सामने के हिस्से में अवाम का एक हुजूम था। दरमियान में एक छोटा सा चबूतरा था जहां मुलजिमान को पेश किया जाता था। आज वहां ये आलिम खड़ा था, सफेद लिबास पहने, मगर हाथों में जंजीरें अब भी बंधी हुई थीं। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बस एक अजब सा सुकून और इस्तिकामत झलक रही थी। राजा ने गला साफ किया और सबको खामोश रहने का इशारा किया। फिर वह आलिम की तरफ मुतवज्जा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, ऐ शख्स, तूने अपनी जिंदगी में बहुत से मसाइल हल किए, लोगों की मुश्किलात दूर की। अब देखते हैं कि क्या तू मेरा एक सवाल हल कर सकता है या नहीं। सुन, मैं तुझसे पूछता हूं कि ये जो औरत नाम की मखलूक है, आखिर वो क्या चाहती है? उसके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? अगर तूने इसका दुरुस्त जवाब दे दिया तो न सिर्फ मैं तेरी जान बख्श दूंगा, बल्कि तुझे शाही दरबार में एक मुअज्जिज मकाम भी दूंगा। और अगर जवाब न दे सका तो तुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि ये कैसा सवाल है। एक तरफ उलमाए किराम सरगोशियां करने लगे कि क्या ये सवाल फिकही नौयत का है या समाजी? क्या इसका कोई एक जवाब मुमकिन है या औरतों की ख्वाहिशात मुख्तलिफ होती हैं? दूसरी तरफ आम लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या वाकई इसका कोई हतमी जवाब हो सकता है? उधर आलिम फाजिल ने सर झुकाए खड़ा रहा। उसके लब हिल रहे थे जैसे दिल ही दिल में कोई दुआ पढ़ रहा हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने सर उठाया
और राजा से मुद्बाना अर्ज की, आलीजा, ये सवाल वाकई बहुत अहम है, लेकिन इसका जवाब तलाश करना इतना आसान नहीं। अगर इजाजत हो तो मुझे कुछ मोहलत इनायत फरमाइए ताकि मैं तहकीक कर सकूं, लोगों से पूछ सकूं, किताबें खंगालूं और औरतों के मिजाज को समझने की कोशिश कर सकूं। फिर ही मैं कोई माकूल जवाब देने के काबिल हो सकूंगा। राजा ने आंखें सकोड़कर आलिम को देखा। उसने महसूस किया कि ये शख्स वाकई संजीदा है। वजीर आजम ने भी राजा के कान में सरगोशी की कि ये कोई आसान सवाल नहीं, अगर मोहलत दी जाए तो शायद जवाब मिल जाए। यूं राजा ने सोचा कि फौरी तौर पर कोई हतमी फैसला करने की बजाय अगर कुछ वक्त दे दिया जाए तो शायद हकीकत तक पहुंचा जा सके। चुनांचे राजा ने दरबार में ऐलान किया, हम तुम्हें 1 साल की मोहलत देते हैं। अगर 1 साल के अंदर अंदर तुमने इस सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब न दिया तो फिर कोई तुम्हें फांसी से नहीं बचा सकेगा, लेकिन अगर तुमने जवाब दे दिया तो तुम्हें फांसी माफ बल्कि मजीद इनाम व इकराम भी दिया जाएगा। ये सुनते ही आलिम ने सुकून का सांस लिया। 1 साल एक तवील मुद्दत थी, मगर ये सवाल भी गैर मामूली नौयत का था। दरबार में मौजूद लोगों ने भी इत्मीनान का इजहार किया कि चलो अब इस बेगुनाह की जान तो फिलहाल बच गई। राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आलिम को कैद से रिहाई दे दी जाए, अलबत्ता शहर से बाहर जाने की इजाजत न होगी। वो शहर में रहकर जहां चाहे, जिससे चाहे मशविरा कर सकता है, किताबें पढ़ सकता है, लेकिन शहर छोड़कर नहीं जा सकता। आलिम ने यह शर्त भी कबूल कर ली। यूं पहले मरहले में ये कजिया कुछ अरसे के लिए टल गया। राजा ने दरबार बर्खास्त किया और वापस अपने महलात की तरफ लौट गया, मगर उसके दिल में ये सवाल गूंजता रहा कि आखिर औरत क्या चाहती है। वो खुद भी अपनी बीवियों की शिकायतों से तंग था। वो सोचता कि शायद यही मौका है कि मैं भी ये राज जान लूं। अगर मुझे मालूम हो जाए कि औरतों के दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है तो मैं अपनी बीवियों की नाराजी भी दूर कर सकूंगा और शायद ये घरेलू झगड़े खत्म हो जाएं। इस ख्याल से राजा के दिल को कुछ सुकून मिला कि हो सकता है इस आलिम का जवाब मेरे अपने मसाइल का हल भी बन जाए। दूसरी तरफ आलिम फाजिल को शहर के एक सरकारी मेहमान खाने में ठहराया गया। बजाहिर उसे कैदी नहीं समझा जा रहा था, मगर उस पर नजर रखी गई थी ताकि वो कहीं फरार न हो जाए। शहर के लोग उससे मिलने आते, कोई ताजियत करता कि आप पर यह कड़ा वक्त कैसे आन पड़ा, तो कोई दुआ की दरख्वास्त करता। कुछ लोग उससे पूछते कि आपने अब तक क्या सोचा है, क्या आपको औरतों के मिजाज का कुछ अंदाजा है या पता है। आलिम हर एक को यही जवाब देता कि मैं अभी तहकीक कर रहा हूं, दुआ करें कि अल्लाह मेरी मदद फरमाए। ये पहला मौका था कि आलिम फाजिल को वाकई एक ऐसी पहेली का सामना था जिसे हल करना मुश्किल दिखाई दे रहा था। अगरचे वह दीनी और दुनियावी उलूम का माहिर था, लेकिन ये सवाल महज किताबी इल्म से हल होने वाला नहीं था। इसके लिए उसे अमली तौर पर औरतों के मिजाज, उनकी नफ्सियात और ख्वाहिशात को समझना था। चुनांचे उसने शहर में मौजूद मुख्तलिफ खानदानों से मुलाकातें शुरू कीं। वह घरों में जाता, ख्वातीने खाना से बातचीत करता कि उन्हें जिंदगी से क्या शिकायतें हैं, क्या उमंगें हैं, क्या अरमान रखते हैं। कभी वह किसी बूढ़ी खातून से मिलता जो उम्र भर के तजुर्बात रखती थी, कभी किसी जवान लड़की से जिसके सामने जिंदगी के ख्वाब थे, कभी किसी मुतवस्सित तबके की औरत से जो रोजमर्रा के मसाइल में उलझी हुई थी, और कभी किसी अमीर कबीर खानदान की खातून से जिसकी अपनी अलग परेशानियां थीं। मगर जितना ज्यादा वह सुनता उतना ही कंफ्यूजन में इजाफा होता। हर औरत की शिकायत और ख्वाहिश मुख्तलिफ दिखाई देती। कोई कहती कि मुझे दौलत चाहिए, कोई कहती मुझे इज्जत चाहिए, कोई कहती मुझे शौहर का वक़्त दरकार है, कोई कहती मुझे बच्चों की अच्छी तरबियत और सुकून चाहिए। कुछ औरतें कहती कि हमें अपनी मर्जी से फैसले करने की आज़ादी चाहिए, कुछ कहती कि हमारा हक़ विरासत दबाया जाता है। आलिम फाजिल ने नोट किया कि हर खातून की तरजीहात में फ़र्क है। एक मुश्तरका पहलू ज़रूर था कि वह सब अपने आप को किसी न किसी हद तक मजबूर और महदूद महसूस करती थीं, मगर इसके बावजूद एक वाजह जामिया जवाब उसके हाथ न आया। चंद महीने इसी कशमकश में गुजर गए। आलिम के दिल में एक अनजाना सा खौफ भी पैदा होने लगा कि अगर मैं कोई एक हतमी जवाब न ढूंढ सका तो क्या होगा? क्या मुझे वाकई फांसी पर लटका दिया जाएगा? उसने सोचा कि मैं दुआ और इस्तिखारे से भी मदद ले सकता हूं, मगर अल्लाह की तरफ से भी कोई वाजह इशारा न आया। एक रात वह बहुत परेशान था।
उसने तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की, ए अल्लाह, तू दिलों के हाल जानता है, मुझे रास्ता दिखा दे, मुझे इस सवाल का जवाब समझा दे। अगर इस शख्स की जिंदगी और मेरी इज्जत की बका इस जवाब पर मुनहसिर है तो मेरी मदद फरमा। दिल को थोड़ा सुकून तो मिला, मगर कोई हतमी जवाब अब भी सामने ना आया। अगले दिन वह शहर की एक गली से गुजर रहा था कि एक शख्स ने उसे रोककर कहा, जनाब, मैंने सुना है आप एक बड़े सवाल के जवाब की तलाश में हैं। मेरा एक मशविरा है कि शहर के बाहर जंगल में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं। लोग कहते हैं कि वह दुनिया को तर्क करके इबादत में मसरूफ हैं, मगर उनके पास रूहानी उलूम का खजाना है। शायद वह आपकी रहनुमाई कर सकें। ये सुनकर आलिम के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने पूछा, क्या आपको इल्म है कि वह कहाँ रहते हैं? उस शख्स ने रास्ते की निशानदेही कर दी। आलिम ने हुकूमत के कारिंदों से दरख्वास्त की कि मुझे जंगल जाने की इजाजत दी जाए ताकि मैं इस बुजुर्ग से मिल सकूं। कुछ रद ओ कद के बाद इजाजत मिल गई, क्योंकि राजा भी चाहता था कि किसी न किसी तरह इस सवाल का हल निकल आए। अब आलिम ने सफर की तैयारी शुरू की। उसने जरूरी सामान इकट्ठा किया और एक घोड़ा लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। उस सफर में कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। रास्ता सुनसान और खतरनाक था। कभी जंगली दरिंदों का खौफ, कभी डाकुओं का अंदेशा, कभी भूख प्यास की शिद्दत। मगर आलिम के अंदर एक लगन थी कि मुझे हर सूरत उस बुजुर्ग तक पहुंचना है ताकि इस सवाल का जवाब हासिल कर सकूं और अपनी जान भी बचा सकूं। कई रोज के सफर के बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई, जिसके बाहर एक बोसीदा सा चराग जल रहा था। उसने सोचा कि शायद यही वह जगह है। वह झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो अंदर से किसी के जिक्र इलाही की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक ज़ईफ बुजुर्ग बरामद हुए, जिनके चेहरे पर नूर और आंखों में गहरी शांति थी। आलिम ने उन्हें सलाम किया और अपनी सारी दास्तान एगम सुनाई कि कैसे राजा ने उसे एक सवाल के जवाब के लिए 1 साल की मोहलत दी है, और अगर जवाब न दे सका तो फांसी हो जाएगी। बुजुर्ग ने खामोशी से उसकी सारी बात सुनी, फिर एक ठंडी सांस भरकर कहा, बेटा, मैं तो दुनिया तर्क कर चुका हूं। मेरे लिए ये सवाल बहुत पेचीदा है, क्योंकि औरत की नफसियात का इल्म मुझे नहीं। मैं सिर्फ इबादत ए इलाही में मशगूल हूं और दुनियावी मामलों से किनारा कशी इख्तियार कर चुका हूं। आलिम ने बहुत इल्तिजा की कि आपकी दुआ और रहनुमाई की जरूरत है। मैं बहुत जगह जा चुका हूं, मगर कोई वाजह जवाब नहीं मिला। बुजुर्ग ने कहा, दुआ तो मैं कर सकता हूं, मगर तुम्हें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो खुद औरत हो या जिसने औरत की हकीकत को करीब से समझा हो। इस जंगल में एक चुड़ैल के बारे में मशहूर है कि वह दुनिया के कई राज जानती है, मगर वह इंसानों से मेल जोल नहीं रखती। अगर तुम हिम्मत कर सकते हो तो उससे मिल लो। शायद वह तुम्हें कोई ऐसी बात बता दे जो तुम्हारे काम आ जाए। ये सुनकर आलिम फाजिल घबरा गया, मगर फिर सोचा कि अगर इस सवाल का जवाब न मिला तो मौत तो वैसे भी मुकद्दर बन चुकी है। लिहाजा उसने हौसला किया और बुजुर्ग से चुड़ैल का ठिकाना पूछा। बुजुर्ग ने हाथ से एक समत इशारा किया, इस तरफ जाओ, तुम्हें एक पुराना और सुनसान घर मिलेगा। वहां वो चुड़ैल रहती है, मगर याद रखना, वह को किसी को मुफ्त में कुछ नहीं बताती। आलिम फाजिल ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और चुड़ैल के घर की तलाश में चल पड़ा। जंगल घना और वीरान था। हर तरफ सन्नाटा तारी था। दरख्तों की शाखें अजीब अंदाज में झुकी हुई थीं और परिंदे भी कम ही नजर आ रहे थे। वह एक तवील और कठिन सफर के बाद आखिरकार उस सुनसान वादी में पहुंचा जहां बुजुर्ग ने बताया था कि चुड़ैल का बसेरा है। घार के सामने पहुंचकर वह कुछ देर रुका, क्योंकि उसके दिल में खौफ ने जगह बना ली थी। वह जानता था कि चुड़ैल से मिलना आसान नहीं होगा, और अगर वह नाराज हो गई तो शायद वहीं उसकी जान ले ले। मगर उसके पास और कोई रास्ता न था। अगर वह इस सवाल का जवाब न ढूंढ पाया तो 1 साल बाद राजा के हुक्म पर मौत उसका मुकद्दर बनेगी। लिहाजा हिम्मत करके वह आगे बढ़ा और गार के दहाने पर जा पहुंचा। गार के अंदर अंधेरा था। दीवारों से अजीब सी खुशबू और किसी नामालूम जानवर की गूंजती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने धीरे से अंदर झांका और कांपती हुई आवाज में कहा, क्या कोई यहाँ है? अचानक एक करख्त और गूंजदार आवाज घर के अंदर से आई,
कौन है जो मेरी पनाहगाह में आया है? आलिम ए फाजिल ने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूं जो एक सवाल का जवाब हासिल करने आया है। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। आवाज खामोश हो गई। चंद लम्हों के बाद गार के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता एक मखलूक नमूदार हुई। जब वह करीब आई तो आलिम की आंखें हैरत से फैल गईं। वह एक निहायत अजीब शक्लो सूरत वाली औरत थी, जिसका आधा चेहरा बदसूरत और खौफनाक था, जबकि आधा चेहरा हैरतांगेज तौर पर निहायत खूबसूरत और पुरकशिश था। चुड़ैल ने अपनी रोशन आंखों से आलिम को घूरा और बोली, तुम जानते हो कि यहाँ आने की कीमत चुकानी पड़ती है? ठीक। आलिम ने सर झुकाकर कहा, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे कुछ मांगोगी, मगर मैं एक ऐसे सवाल का जवाब हासिल करने आया हूं जिस पर मेरी जिंदगी का दारो मदार है। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। चुड़ैल ने एक पुरस्सरार मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें किस सवाल का जवाब चाहिए? आलिम ने गहरी सांस ली और कहा, यह सवाल एक अजीम राजा ने मुझसे पूछा है, और अगर मैं सही जवाब न दे सका तो मुझे फांसी हो जाएगी। सवाल यह है कि औरत आखिर क्या चाहती है? ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में चमक आ गई। वह हल्का सा हंसी और बोली, ये एक बहुत पुराना सवाल है, मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस सवाल का सही जवाब बहुत कम लोगों को मालूम है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम यहां तक पहुंचे हो। आलिम बेताबी से बोला, तो क्या तुम इस सवाल का जवाब जानती हो? चुड़ैल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं जानती हूं, मगर मैं ये जवाब तुम्हें यूं ही नहीं दूंगी। आलिम ने फौरन पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? चुड़ैल ने गहरी नजर से उसे देखा और बोली, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये अल्फाज सुनकर आलिम के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वह हैरत और खौफ में डूब गया। शादी? एक चुड़ैल से? ये कैसा इम्तिहान था? अगर वह इनकार कर दे तो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा और उसकी मौत यकीनी हो जाएगी, और अगर हां कह दे तो उसकी बाकी जिंदगी एक चुड़ैल के साथ गुजरेगी। वह गहरी सोच में पड़ गया। चुड़ैल खामोशी से उसके रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रही थी। ये फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता था। आखिरकार उसने एक लंबी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। ये सुनते ही चुड़ैल की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह मुस्कुराई और बोली, यही मैं सुनना चाहती थी। फिर उसने हाथ उठाया और फजा में कुछ अजीब से अल्फाज कहे। अचानक पूरा गार रोशनी से भर गया, जैसे हजारों दिए एक साथ जल उठे हों। आलिम फाजिल हैरत से इर्द गिर्द देखने लगा। गार की दीवारें सुनहरी रंग में नहाने लगीं और चुड़ैल का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वह जो पहले खौफनाक नजर आ रही थी, अब किसी हद तक कम खौफनाक लगने लगी। चुड़ैल ने आलिम को करीब बुलाया और बोली, अब ये शादी मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। आलिम ने लरजते हुए कदम आगे बढ़ाए। चुड़ैल ने कुछ अल्फाज अदा किए और फजा में एक सनसनी फैल गई। ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात इस लम्हे को देख रही हो। आलिम ने बोझल दिल के साथ चुड़ैल के सामने सर झुका दिया। चुड़ैल ने एक सुनहरी अंगूठी निकाली और आलिम के हाथ में थमा दी। अब तुम मेरे शौहर हो, उसने कहा, और उसके साथ ही एक जोरदार आवाज गूंजी। आलिम को ऐसा लगा जैसे जमीन हिल गई हो। अचानक चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, चूंकि तुमने अपनी मर्जी से ये शादी कबूल की है, मैं तुम्हें एक राज बताती हूं। आलिम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। चुड़ैल ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, मैं दिन के 12 घंटे चुड़ैल रहती हूं और रात के 12 घंटे एक हसीन परी में बदल जाती हूं। आलिम की आंखें हैरत से फैल गईं। वह कुछ बोलना चाहता था, मगर अल्फाज न मिले। चुड़ैल ने मजीद कहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा कि मैं दिन में चुड़ैल बनूं या रात में। ये सवाल आलिम के लिए एक और आजमाइश था। अगर वह चुड़ैल को रात के वक्त खूबसूरत बनाने का कहता तो दिन में लोग उसे देखकर खौफजदा हो जाते। वह एक और मुश्किल इम्तिहान में फंस चुका था। अब उसे सोचना था कि क्या फैसला करे। आलिम फाजिल गहरी सोच में डूब गया। चुड़ैल का सवाल बजाहिर आसान लग रहा था, मगर हकीकत में ये एक निहायत पेचीदा मसाला था। अगर वह दिन में चुड़ैल रहती तो लोग उसे देखकर खौफ खाते,
आलिम के लिए भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, और अगर वह रात में चुड़ैल बन जाती तो उसका सुकून और आराम तबाह हो जाता। चुड़ैल खामोशी से उसका जवाब सुनने का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह आलिम के दिल में चलने वाली कश्मकश को महसूस कर रही हो। आलिम ने कई पहलुओं पर गौर किया, मगर किसी भी रास्ते का अंजाम उसे अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार उसने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से कहा, "ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं। तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जो बेहतर समझो वही करो।" ये सुनकर चुड़ैल बेहद हैरान हुई। उसके चेहरे पर एक गैर मुतवक्के खुशी की लहर दौड़ गई। वह मुस्कुराई और बोली, "क्या तुम वाकई मुझे अपनी मर्जी की आजादी दे रहे हो?" आलिम ने सर हिलाया और कहा, "हाँ, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि तुम एक इंसान हो, चाहे तुम्हारी शक्ल कुछ भी हो। हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है, और मैं तुमसे मोहब्बत या नफरत तुम्हारी शक्ल की बुनियाद पर नहीं कर सकता।" ये अल्फाज सुनते ही चुड़ैल के चेहरे पर एक अनोखा नूर फैल गया। अचानक उसके आसपास रोशनी की एक चमक पैदा हुई और वह धीरे धीरे बदलने लगी। आलिम हैरत से देखता रहा। चंद लम्हों बाद चुड़ैल मुकम्मल तौर पर एक हसीन व जमील औरत में तब्दील हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "चूंकि तुमने मुझे अपनी मर्जी की आजादी दे दी है, मैं हमेशा के लिए हसीन परी बनकर रहूंगी।" आलिम फाजिल हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ उसकी तरफ देखने लगा। चुड़ैल ने कहा, "यही राजा के सवाल का जवाब है। औरत सिर्फ यही चाहती है कि उसे अपनी मर्जी के मुताबिक जीने दिया जाए। अगर उसे आजादी मिले तो वह हमेशा हसीन, खुशो खुर्रम और रहमत बनकर रहेगी, और अगर उसकी आजादी छीन ली जाए तो वह चुड़ैल बन जाएगी।" आलिम फाजिल लंबे सफर के बाद आखिरकार राजा के दरबार में पहुंचा। राजा अपने तख्त पर बैठा हुआ था। जब आलिम फाजिल दरबार में दाखिल हुआ तो राजा ने एक गहरी नजर उस पर डाली और पूछा, "तो क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिल गया?" आलिम ने सर झुकाया और कहा, "जी हां, मैंने आपके सवाल का जवाब तलाश कर लिया है।" राजा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। वह जानता था कि इस सवाल का जवाब आसान नहीं, और अगर आलिम वाकई सच बोल रहा था तो यह हैरत की बात थी। उसने कहा, "अच्छा, तो बताओ, औरत आखिर क्या चाहती है?" आलिम फाजिल ने सुकून से दरबार में खड़े होकर कहा, "औरत सिर्फ एक चीज चाहती है, और वह है अपनी मर्जी की आजादी। अगर उसे अपनी जिंदगी जीने की आजादी दी जाए तो वह हसीन, खुशो खुर्रम और रहमत बनकर रहेगी, लेकिन अगर उसकी आजादी छीन ली जाए तो वह चुड़ैल बन जाएगी।" राजा ने कुछ लम्हे खामोशी से गौर किया, फिर एक जोरदार कहखा लगाया, "आलिम फाजिल, तुमने मेरा सवाल हल कर दिया। तुम्हारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।" फिर राजा ने दरबार में ऐलान किया, "मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हें इनाम और इकराम से नवाजता हूं।